good day to all of you. Today I am going to take up the second part of the lesson Lost Spring Stories of Stolen Childhood by Annie's Jung. Today we are going to talk about the story I Want to Drive a Car. Now, in the story, we find the hardships of the bangle makers of Firozabad and a special emphasis on the forces that conspire against them and obstruct their progress. The bangle makers of Firozabad are born in poverty, live in poverty, and die in poverty. For generations, these people have been engaged in this trade. In spite of hard labor throughout the day, the return is meager. So let's get on to the story. ये story किसके बारे में है actually? It is about bangle makers of Firozabad and how they live in poverty and how they are used to the poverty around them. But still, we find the hero of the story, Mukesh. He, in spite of living in poverty, he still has a dream. And what is his dream? I want to drive a car. Okay, so let's start this lesson now. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. So, what happens here? When Anis Jung, now she's talking about another boy here, Mukesh. When she goes to Firozabad and she meets him, she asks him as she asks all small or little children, she asks him, क्या बनना है तुम्हें, like this. और वो बोलता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है. तो शी आस्क्स हिम, क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ भी जानकारी है? तो वो बोलता है कि आई विल लर्न. ही सेज आई लर्न टू ड्राइव अ कार एंड ही लुक्स स्ट्रेट इनटू हर आईज. ही इज सो लाइक डिटरमाइंड. You can say that he wants to drive a car and he wants to make his dream come true. He is from a very poor family in Firozabad, and again now Firozabad is a place which is famous for bangles. Look at the picture. It has so beautiful bangles of all colors and every hue. And every other family in Firozabad, you can say all are engaged in making bangles only. और यहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है और इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पर so many generations में दादाजी के दादाजी के दादाजी all have made bangles only. फर्नेस के पास में बैठ जाते और छोटे छोटे ग्लास पीसेस को वेल्डिंग कर कर बैंगल्स बनाते रहते. ऐसा लगता है पूरी दुनिया के बैंगल्स ये लोग ही बना रहे हैं. Now, Mukesh's family is among them. None of them know how the glass bangle industry is actually illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours after losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly door made of iron with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove which sits a large vessel of sizzling
spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. So अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? Now the small hero, that is the little boy, उसकी फैमिली जो है वो जनरेशन से बैंगल्स बना रहे हैं. And we can find that small, like little children like Mukesh and so many girls and boys over there, they are sitting in the small furnaces, in the small like rooms जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और छोटे छोटे लैम्प्स वहाँ होते हैं और एकदम अंधेरा जैसा होता है वहाँ पर वो लोग बैठकर, कभी कभी हवा भी नहीं होती वहाँ पर, उस जगह पर बैठकर ये लोग बैंगल्स बनाते रहते हैं. और मुकेश इस फैमिली को ये पता ही नहीं है कि छोटे बच्चों को यहाँ पर वर्क करवाना एक्चुअली इलीगल है. उनको पता ही नहीं कि अगर वो लोग पकड़े जाएं तो उनको जेल हो सकती है. दे डोंट नो दिस. ओके, एंड द स्मॉल चिल्ड्रन दे सिट देयर एंड दे गो ऑन मेकिंग द बैंगल्स ऑल द टाइम. पर अब मुकेश क्या बोलता है, ही टेल्स द ऑथर कि चलो मैं आपको अपने घर ले चलूँ. तो वहाँ वो बहुत खुश है कि उसका घर फिर से वापस रेनोवेट हो रहा है, फिर से बनाया जा रहा है. तो वो ऑथर भी सोचती चलो उसके घर जाके देखा जाए क्या हो रहा है. एंड शी स्टार्ट्स वॉकिंग विथ हिम. एंड जब वो वॉक करते तो वो देखती है कि जहाँ से वो अपने घर ले जा रहा है उसमें बदबूदार लेन्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं जहाँ से वो लोग चल के जाए, जो रोड्स उसके घर की तरफ जा रहे हैं वो इतनी बदबू से भरी हुई है क्योंकि वहाँ पर सब जगह कचरा और गार्बेज वहाँ पर फैला हुआ है और वो गार्बेज कितने ही दिनों से साफ़ नहीं किया गया है. दैट्स वाई उसमें से एक बहुत ही डर्टी स्मेल यू कैन से इज़ कमिंग आउट फ्रॉम देयर. एंड वो जैसे जैसे वो चलती जा रही है तो वो पूरा नज़ारा देख रही है, आजू बाजू क्या हो रहा है सब कुछ. और वो क्या देखती है कि जो भी वहाँ पर घर हैं वो सारे घर जो हैं ज़्यादातर सबकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है. या तो वो टूट रहे हैं या तो वो उनकी जो डोर्स और विंडोज़ जो हैं वो ठीक से बंद ही नहीं होते हैं. और इतने सारे लोग एक छोटे से घर में रह रहे हैं और कभी कभी उनके एनिमल्स भी वहाँ पर रह रहे हैं. एट लास्ट वो एक घर के पास आके ऐसे ही एक टूटा फूटा और लाइक यू कैन से आयरन डोर वाला घर होता है, वहाँ पर वो आता है और फिर वो वहाँ रुक जाता है और फिर अपने फीट से वो डोर को किक करके ओपन करता है. और जैसे ही वो ओपन करता है तो क्या देखती है वो कि एक छोटा सा एक घर है वहाँ पर. ओके, शैक मीन्स वेरी स्मॉल हाउस. और स्मॉल हाउस के अंदर व्हाट टू से हाफ बिल्टी है वो, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि मेरा घर रेनोवेट हो रहा है ऐसे. उसको तो वो बहुत बड़ी बात लग रही है. और वो क्या देखती है, उस घर के 2-3 पार्ट्स है. वो घर छोटा सा घर ही 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें उसके ऊपर जो उसका रूफ है वो थैच किया गया है डेड ग्रास से. और एक तरफ एक स्टोव है और स्टोव फायरवुड से वो जल रहा है और उसके ऊपर बहुत ही एक बड़ा एक तपेला यू कैन से लाइक ए वेसल वहाँ पर रखा हुआ है और उसके ऊपर पानी में स्पिनच की लीव्स जो हैं वो उसके अंदर बॉईल हो रही है. और साइड में ही क्या देख रही है, एक बहुत बड़ा एक एल्युमिनियम का व्हाट यू कैन से प्लेटर है और प्लेटर में बहुत सारे और भी वेजिटेबल्स है. इसका मतलब कुछ खाना पकाया जा रहा है. इट्स टाइम फॉर कुकिंग फूड आई थिंक. नाउ अ फ्रेल यंग वुमन is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangles maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे ही वो ऑथर देख रही है वहाँ पर खाना पक रहा है, उसके साथ साथ क्या देखती है, वहाँ पर एक लेडी है. ओके, और वो लेडी ऐसी यंग लेडी है एक्चुअली.
और उसको पता चलता है कि वो लेडी एक्चुअली मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है, और वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो लाइक शायद उसकी शादी बहुत जल्दी हो चुकी है, सो शी इज़ अ यंग गर्ल एक्चुअली। और वो पूरे घर का अब उसने अच्छे से कमांड ले लिया है, एंड कमांड मीन्स अच्छे से संभाल लिया है पूरा घर। और वो डॉटर इन लॉ है, और अचानक से वो देखती है, क्या देखती है कि उसके फादर हैं, जो मुकेश के फादर, वो घर में एंटर होते हैं। जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं, तुरंत जो उनकी बहुरानी है, ओके, एज वी से इन हिंदू कस्टम, जो बहुरानी है वो जल्दी से अपना जो साड़ी है अपने फेस को ढक लेती है अपने साड़ी से। वो एक तरह का कस्टम है इन मोस्ट हिंदू फैमिलीज, यू कैन सी वेयर यंग बहू जो है, शी पेज रेस्पेक्ट टू द फादर इन लॉ बाय कवरिंग अ हेड, ओके। एंड in mostly you can see this type of custom in villages also still existing, and many place many people still they have this type of customs, okay. Now in this the जो father है मुकेश का फादर, वो भी एकदम एक पतला दुबला आदमी है, इम्पॉवरिश्ड में जिसको बहुत सालों से खाना पीना लाइक प्रॉपर मिला ही ना हो, इम्पॉवरिश्ड है। और उसको एक ही काम आता है, वो है बैंगल्स मेकिंग। बहुत पहले वो एक टेलर की तरह काम करता था, उसके बाद उसने बैंगल्स बनाना सीख लिया, और उसके बाद उसके पास इतना पैसा कभी था ही नहीं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, और वो अपना जो घर था उसका, वो ठीक से उसको कभी रेनोवेट ही ना कर सका। उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि उसको वो ठीक से बना सके, पर फिर भी उनके पास एक घर है जिसमें वो लोग रह रहे हैं। और वो क्या बोलता है, उसके फादर क्या बोलते हैं कि मुझे एक ही चीज़ आती थी, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वही चीज़ मैंने अपने बच्चों को सिखाई है, इसके सिवाय मुझे कुछ आता ही नहीं है। अब वहाँ पर मुकेश की ग्रैंडमदर बैठी हैं, तो देखो, लेट्स सी व्हाट शी इज सेइंग। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies, born in the caste of bangle makers. They have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। तो क्या होता है, मुकेश की मदर बोलती है कि अब हम लोग उसको स्कूल वगैरह तो भेज नहीं सके, क्योंकि वही उसके कर्म में लिखा है कि उसको बैंगल्स ही बनाना है हमारी तरह। और उसने देखा है फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स, उनके हस्बैंड जो हैं, जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, उसने अपने हस्बैंड को क्या देखा है, उसने देखा कि उसके हस्बैंड भी बहुत सालों से वो चूड़ी बनाते बनाते लाइक बैंगल्स बनाते बनाते उनको क्या हुआ, वो जब ग्लास की बैंगल्स बनाते हैं तो उसको पॉलिश किया जाता है, और जब वो पॉलिश करते हैं एक बहुत ही फाइन डस्ट, जो ग्लास का डस्ट है, वो पूरे उस रूम में उड़ने लगता है। और उसकी वजह से धीरे धीरे जो बैंगल मेकर्स हैं, जैसे जैसे वो ओल्डर होते जाते हैं, उनकी आँखों में वो डस्ट बार बार जाने की वजह से उनको ठीक से दिखना बंद हो जाता है, और एक टाइम ऐसा है दैट दे जस्ट बिकम ब्लाइंड ओनली। और इन लोग ने अपनी लाइफ में कुछ कभी देखा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ बैंगल्स देखी है, घर में बैंगल्स, घर के बाहर बैंगल्स, हर स्ट्रीट में बैंगल्स, और उसके सिवाय उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। दे हैव सीन ओनली बैंगल्स, और उनको सिर्फ बैंगल्स बनाना ही आता है, दैट्स ऑल। दैट्स व्हाट मुकेश's ग्रैंडमदर सेज। हमारी कास्ट ही बैंगल मेकर्स की है, तो हम उसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ बैंगल्स वी कैन सी ओवर हियर, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards and piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to lines of flames of flickering lamps sit boys and girls with their father and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing the eyesight before they become adults. So what happens here? वो जैसे ही अब फिरोज़ाबाद के उनके घरों के आसपास सब जगह देखो तो आप क्या देख सकते हो, यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल बैंगल्स। देखो पिक्चर में, यू कैन सी ऑल द कलर्स ऑफ द बैंगल्स देयर।
ग्रीन, गोल्डन, ब्लू, पिंक, पर्पल, सारे कलर्स हैं वहाँ पर। ऐसा लगता है कि रेनबो ऑफ कलर्स ही वहाँ पर आ गए हैं। और ये देखो इन द पिक्चर यू कैन सी द लाइन माउंट्स। माउंट्स मैंने एक के ऊपर एक रख कर एक बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ बैंगल्स यू कैन सी। एंड सी द पिक्चर ऑल ऑफ यू, वहाँ पर यू कैन सी द माउंट्स ऑफ बैंगल्स। और उसके बाद ये बैंगल्स को जो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट है उस पर सारे पर वो बैंगल्स रख दी जाती है। और ये जो यंग बॉयज़ और यंग मेन जो है फैमिली में, वो लोग इसको बैंगल्स को ले जाते हैं और पूरे फिरोज़ाबाद में इसको बेचने की कोशिश करते हैं। और वो बेच के भी आते हैं बहुत सारे बैंगल्स। और बाद में क्या होता रहता है, उस जब वो जाते हैं बेचने, उस टाइम पर जो हट्स हैं उसके अंदर छोटे बॉय, छोटे से लड़के, छोटे गर्ल्स, उसके फादर्स, मदर्स, सब लोग यू कैन सी एज यू सी इन द पिक्चर। देखो पिक्चर में दे ऑल सिट इन लाइन्स नेक्स्ट टू ईच अदर। एक लाइन बना के सब लोग बैठ जाते हैं और उनके सामने यू कैन सी इन द पिक्चर वो फ्लिकरिंग लैम्प है, एक छोटा सा लैम्प है। और उस लैम्प से वो लोग वो जो ग्लास पीस है उसको गर्म कर करके चिपका कर वो लोग बैंगल्स के सर्कल्स बनाते जाते हैं। अब उस रूम्स में इतनी डार्कनेस है, मीन्स बहुत ही कम लाइट है उस रूम से। लाइट तो है, वो लैम्प की लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है वहाँ पर। तो वो लोग को वही लाइट अब अच्छी लगती है, उनकी आइज़ उसी से एडजस्ट हो गई हैं। जब भी वो बाहर आते हैं और वो सन को देखते हैं, जो बाहर जो डे है, तो उसमें उनको एक्चुअली उनकी आंखों में कुछ दिखता नहीं, इट बिकम्स सो ब्राइट फॉर देम। सो दे लाइक टू सिट इनसाइड ओनली एंड गो ऑन डूइंग द वर्क विच दे हैव बीन डूइंग। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो डस्ट ऑफ द बैंगल्स, जो ग्लास डस्ट है, उसकी वजह से वो लोग अपनी आईसाइट हमेशा खो देते हैं। जब तक वो अडल्ट बने तब तक उनकी आईसाइट ख़त्म हो जाती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says, in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. So अब क्या होता है वहाँ पर जब ऑथर देखती है तो क्या देखती है, एक यंग गर्ल है जिसका नाम सविता है और एक बहुत ही फेडेड पुरानी सी पिंक ड्रेस पहनकर वो बैठी है। और वहाँ उसके साथ एक एल्डरली वुमन है, एक ओल्ड वुमन यू कैन से, वो वहाँ पर बैठी हुई है और दोनों मिलकर वो ग्लास के पीसेस को सोल्डर कर रहे हैं, चिपका रहे हैं। ओके, एंड उसकी वो लोग दोनों के हाथ में एक टोंग्स हैं, यू कैन सी द पिक्चर टोंग्स। ओके, ये टोंग्स को वो लोग उठाते हैं और उससे वो लोग पूरा अपना बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं। अब द ऑथर एनिस जंग सोचती है कि क्या इस लड़की को इस बैंगल्स के बारे में कुछ भी पता है कि क्या बैंगल्स एक्चुअली बैंगल्स का क्या सिंबल है, व्हाट डू दे सिंबलाइज। बैंगल्स ज़्यादातर बैंगल्स कब लेडीज़ कब पहनती हैं, बैंगल्स यूजुअली जब उसकी वेडिंग होती है, जब वो उसकी शादी होती है, दैट टाइम शी वेयर्स बैंगल्स एंड शी वेयर्स ऑल दिस रेड बैंगल्स, शी वेयर्स वेडिंग ड्रेस जो बोलते हैं वो। और उस वेडिंग ड्रेस का जो चुनरी है वो अपने सर पे वो चुनरी डालती है और उसके हाथ देखोगे तो सारी मेहंदी लगी हुई है हाथ में। एंड वो ज़्यादातर सारी जो ब्राइड्स हैं वो रेड बैंगल्स, बिकॉज वो एकदम क्या कहते हैं, एक सुहाग की निशानी होती है। सो दे वेयर दोज रेड बैंगल्स ऑल द टाइम, दिस ब्राइड्स। सो शी सेज, क्या इस लड़की को पता है इस बैंगल्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो वो सोचती है कि जैसे ये ओल्ड लेडी शादी करके अपने घर गई होगी, तब इसने ऐसे ही एक ब्राइड बन के गई होगी, ऐसे ही एक दिन ये सविता जो लड़की है वो भी एक दिन ब्राइड बनेगी। और तब जब वो ये रेड बैंगल्स पहनेगी तब उसको पहली बार पता चलेगा ये रेड बैंगल्स का मीनिंग क्या है। और अब वो देखती है कि जो साइड में ओल्ड लेडी है उसके हाथ में बैंगल्स तो हैं पर उसकी आँख में लाइट है ही नहीं, शी इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड ओनली, देयर इज़ नो लाइट इन आइज़। और वो लेडी बहुत ही दुखी आवाज़ में क्या कहती है कि मैंने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। उसने बोला, मैंने आज तक इतने साल हो गए, मेरी शादी हो गई, उससे पहले भी कभी भी मैंने भर पेट
खाना नहीं खाया है. ऑलवेज आई हैड दैट मच फूड ओनली, लिटिल फूड ओनली, और लिटिल फूड में ही मैं जैसे तैसे अपना टाइम मैंने निकाला है. और उसकी वॉइस में कोई जॉय नहीं है. एंड शी इज़ सो अनहैप्पी ऑल्सो of her status, but she cannot do anything about it, so she just goes on and on. Okay. और वो सोचती है कि इतना सारा मैंने काम किया फिर भी मुझे कभी भी ठीक से पेट भर के खाना मैंने आज तक नहीं खाया है. Now her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो वो उसका हस्बैंड जो है ओल्ड मैन, वो क्या, उसकी बड़ी सी लंबी सी दाढ़ी है. फ्लोइंग बियर्ड मीन्स लॉन्ग लॉन्ग बियर्ड. और वो क्या कहता है कि मुझे बैंगल्स के सिवाय मुझे कुछ आता ही नहीं है. मैंने सिर्फ बैंगल्स ही बनाई है और मैंने अपने फैमिली के लिए एक घर बनाया. वो ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही बड़ा काम किया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक घर भी नहीं बनाया. तो ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है कि एक छोटा सा घर अपने फैमिली के लिए तो बना सका. ऐसे ऑथर अपने मन में सोचती है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of the elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a young group of men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there's no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. So what happens here? जो यंग मैन हैं वहाँ पर, वो सब भी अपने ओल्ड मैन की तरह ही उनकी लाइफ भी चल रही है. वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं. ऐसा लगता है सबके माइंड्स नम हो गए. नम बने एकदम बंद हो गए. और उनको कोई भी ड्रीम्स करने का जो इच्छा है वो सब ड्रीम्स उनकी ख़त्म हो चुकी हैं. और वो उन लोग को एक ही काम आता है, बैंगल्स बनाना, बैंगल्स कोई अमाउंट्स बनाना, फिर उनको बेचने जाना. और यही काम चलता आ रहा है फ्रॉम सालों साल से. यही काम वो लोग करे जा रहे हैं. तो वो ऑथर उसको एक तरह का टिप देती है, एक तरह का सजेशन देती है कि तुम सब लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते. अगर सब लोग एक कोऑपरेटिव बना लोगे तो आपकी जो बैंगल्स हैं वो एक अच्छे दाम पर आप बेच सकते हो. तो जो यंग मैन हैं और जो एल्डर्स हैं वहाँ पर, वो लोग बोलते हैं जब भी हम लोग कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको कोई, पहली बात तो कोई लीडर नहीं मिलता. और कोई लीडर मिलता भी है तो कोई ना कोई जो मिडिल मैन होते हैं. मिडिल मैन कौन होते हैं? जो उनसे कम प्राइस में बैंगल्स खरीद कर उसको ज़्यादा प्राइसेस में बाहर जाकर बेच देते हैं और सारा प्रॉफिट वो लोग खुद कमा लेते हैं. ये मिडिल मैन अपना बिजनेस को ख़त्म क्यों करेंगे? इसलिए वो लोग, अब वो मिडिल मैन बहुत पावरफुल है. दे नो the people from top to bottom, all the policemen and the politicians and all those people. So naturally they don't allow this bangle makers to form a cooperative. अगर किसी ने ऐसी जुर्रत करने की कोशिश करी तो वो क्या करते हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं और खूब पिटाई करते हैं. इसलिए वो जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही जीते रहते हैं. वो वही चलने देते हैं और वो जो पॉवर्टी में जी रहे हैं उसी पॉवर्टी में वो जीते ही जा रहे हैं. And there's nothing that can help them from there. Now, listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he just cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home.
I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In a small murmur, there's an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. So what happens here now? जब वो इन सब लोग की बातें सुनती है, जो ऑथर है, तो उसके पास दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स दिखाई पड़ते हैं उसको. एक तो उनकी फैमिली है जो पूरे पॉवर्टी के जाले में कॉट हो चुकी है, लाइक दे आर कम्प्लीटली नाउ पुअर ऑल ऑफ देम. और उसके साथ साथ कास्ट का भी उनके पास एक स्टिग्मा है. और दूसरा वो क्या देखती है, दूसरी तरफ क्या देखती है कि एक सर्कल है. सर्कल में कौन कौन है? साहूकार्स है, मिडलमैन है, पुलिसमैन है, लॉ कीपर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं. सो ऑल दिस पीपल टुगेदर, उन लोग सब ये क्या करते हैं, उन लोग को, वो लोग पुअर पीपल हैं, उनके ऊपर वो लोग राज करते हैं और उनको लाइक दबा देते हैं. दे डोंट अलाउ देम टू मूव अप इन लाइफ. और उन लोग ने अपना पूरा जो पुअर पीपल है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ने छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से लेके यंग पर्सन सब लोग उनके घर में काम कर रहे हैं. पर फिर भी वो लोग एक डिग्निटी वाली लाइफ नहीं जी पा रहे. उनके पास ठीक से खाने के लिए नहीं है. और जब भी कोई सोचता है कि हम इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करें तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. एट लास्ट वो ऑथर क्या देखती है कि वो देखती है अब मुकेश अभी बहुत छोटा सा लड़का है. सो ही डजंट नो ऑल द प्रॉब्लम्स विच द पीपल इन हिज हाउस आर फेसिंग. तो वो बोलता है मुझे तो आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक. अब सब बैंगल सेलर्स हैं, उसके फादर के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो वो मोटर मैकेनिक उसको कैसे बनाएगा, वो सब वो सोच ही नहीं पाता. और वो बोलता है मैं, फिर वो पूछती है तुम गराज कैसे जाओगे, वो तो बहुत दूर है. तो बोलता नहीं नहीं मैं तो वॉक करके चला जाऊँगा और वहाँ पर मैं मोटर मैकेनिक का काम सीखूंगा एंड आई बी ए मोटर मैकेनिक. क्यों वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है? क्योंकि उसने फिरोज़ाबाद में बहुत सारी कार्स हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर द लॉट्स ऑफ कार्स रनिंग अप एंड डाउन. एंड उसने कार्स बहुत सारी देखी है. पर जब ऑथर उसको पूछती है कि क्या तुम प्लेन चलाओगे, तुमको प्लेन चलाना है, तेरे को पायलट बनना है, तो एकदम से वो लड़का चुप हो जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है. क्योंकि उसको पता है कि मेरी लाइफ में मैं इतना ही कर लूँ मेरे लिए बहुत है, बट आई कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट. और क्योंकि एरोप्लेन्स उसने बहुत ही कम देखे हैं, उसको पता है छोटे से बच्चे को भी एरोप्लेन्स बहुत कम है फिरोज़ाबाद में. देयर आर नो एरोप्लेन्स बट ही लव्स टू ड्रीम्स ऑफ कार. He loves to dream about cars because he can see them all the time moving around here and there, and that is the so एक अच्छी बात क्या देखती है ऑथर कि एक स्पार्क है ऑफ ड्रीम अभी भी मुकेश जैसे लड़के में अलाइव है कि उसको अपने घर में जो बैंगल मेकिंग है उसके सिवा उसको हटकर उनको उसको कुछ काम करना है. सो व्हाट वी कैन सी इन द एंड ऑफ द स्टोरी, these two stories together, the story about Sahib and Mukesh, what do they show? They depict the plight of street children, and these street children are forced into labor early in life and they're denied the opportunity of schooling. The carelessness of the society and the political class, they also add only sufferings to these poor children. So we can see they are all in the grinding poverty, and this is the life they have to lead.